How did you start this work and how did you come into this field? I was studying, completed my studies, and right after that मैंने काम start कर दिया. I would say passion था to work in this clinical psychology की field में. Obviously जो बच्चे आपके पास आते हैं they have issues with speech, they have issues with Non-verbal. expression. कौन सी age group के साथ आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर आप काम कर सकते हो? I think instinctively I click very well with children, with younger children, middle age, or even older kids. As long as the research says for autism, earlier intervention. Point out some symptoms and signs of autism which parents can see at an early age. 18 months ke around, the child is developing. So your cognition, your social smiles, eye contact, responding to their names. So 18 months plus pay if a child doesn't want to hug their mothers. That's I think big sign. If a child doesn't smile in response to somebody's smile, that is a type of autism. सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना चाहिए once they notice these signs or symptoms in their child? Autism, speech delays, ADHD. ये सब कुछ बहुत common आ रहा है. First thing is to be aware if there is any sort of mental health issue. Delay ना करो चीज़ों को. तो जो pediatrician अपने client को देगा, patient को देगा ना parents को, I mean that would be the best guide. Applied behavior analysis. आपको चाहिए बच्चे को अपने behavior wise settle करना है. Then comes speech and language. Speech language pathologist है वो भी बहुत आपको guide करना उसको लेके चलना है. OT is work on all your sensations. जब तीनों levels पे therapy collectively मिलती है, तो बच्चे में change must है. Hi everybody and welcome back to another episode of Let's Talk with Sadia Salman. Today we have with us a very special guest, someone very close to my heart. She's a psychologist by profession. She has a degree from UK. She's been working in this field for the last 29 years. Looking at her, you wouldn't feel that way, but trust me, she's been in this field for 29 years. So this is my friend Maliha Latif. Hi Maliha. Hi. How are you? I'm good. How are you? I am good. Thank you so much for coming here today. अच्छा मलिया, जब हम ये बात करते हैं 29 years, मुझे बोलते हुए भी बहुत ही odd लग रहा था. You don't look it at all. So सबसे अच्छी बात तो ये कि you maintained yourself so well. तो बताइए, how did you start this work and how did you come into this field? What got you started? I think there's never been a gap. I was studying, completed my studies, and right after that मैंने काम start कर दिया. चलती गई और फिर होते गया. Graduates के after working 2 to 3 years, then I went abroad, UK. फिर वहाँ पे करने के बाद then I came back. और तब से ये चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है. शौक हमेशा से था, इंस्पिरेशन थी, शौक था. शौक भी नहीं था, आई वुड से पैशन था टू वर्क इन दिस क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में. फिर आई थिंक आई मोर ड्रिवन टुवर्ड्स चिल्ड्रन एंड देन स्पेशल नीड्स. सो होता चला गया, आई थिंक. I remember when I first met you, that was way back in 2006. And Mikal was 3 years old at the time. Yes, I remember. Ji. So I assessed him. Yes, you were the was first three. person to assess him, and that's when we found out that he has ADHD and autism. He had these overlapping symptoms. आपको पता है कि जब पेरेंट्स को पहले पता चलता है और जो फर्स्ट डायग्नोसिस होता है वो उनके साथ बड़ी अटैचमेंट हो जाती है जिन लोगों के साथ आप उस वक्त कनेक्ट करते हो. I know. And I remember that you were instrumental in helping Mikal and me and all of the family together, because it's very hard to digest digest that one of your children has autism or any kind of disorder on the spectrum. So आपका इस बारे में क्या experience है? How do you deal with the parents as such? Parents, I would say, over the period of these almost 3 decades, now I can say there's a change in acceptance. Although the chunk of denial is still very high. But now parents come to me, they come to me when they have already gone through the Google and some research, and but sometimes वो over research भी हो जाती है. Yeah. तो लैंग्वेज डिले भी है, तो आके कहेंगे कि हमारे बच्चे को तो ऑटिज्म है. कहती हूँ वो वाह, अच्छा मेरा काम आसान हो गया, तो खुद ही सब चीज़ें हैं. But still I think it's very human, it's very natural to have that pain and to have that difficulty with acceptance. कि एक बच्चे को इस तरह से कोई
इशू है Yeah. और आगे क्या करना है, एंजाइटी बहुत होती है, इनसिक्योरिटी होती है इनिशियली। The best part about you is कि मैं लोगों को इसलिए बता रही हूँ because I'm not promoting you or anything because I've been through it myself. The best part about you is कि आप ना पूरी फैमिली को इकट्ठा बिठा के और उन सारों के इमोशंस के साथ डील करते हो. And empathy is I think one of the biggest assets one can have as a psychologist. Yes. और आप में वो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह. Yeah. So I remember कि मिकाल को जब हम किसी के पास छोड़ भी नहीं सकते थे और डर भी लगता है, छोटा बच्चा है, and you know one whole hour he is going to be with somebody who might not understand what his needs are, who might not understand because obviously जो बच्चे आपके पास आते हैं they have issues with speech, they have issues with Non-verbal. expression, some are non-verbal, you know, तो it's very difficult कि उनको समझना और empathy उनके साथ create करना. So how do you feel about that? कौन सी age group के साथ आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर आप काम कर सकते हो या करना चाहिए ज़्यादा? देखें, if you ask about me, for me any age group is okay, is fine, because I think instinctively I click very well with children, with younger children, middle age or even older kids. अगर मिकाइल आज भी मुझे मिला है, Yes. तो now माशाल्लाह से he's 20, but अभी भी वही लेवल, कंफर्ट लेवल. अगर नया बच्चा भी मिलेगा 18-19 पे, तो वो ही कनेक्टिविटी होती है. तो I think I basically connect with anybody's emotions and that mental एक जो framework होता है. That's right. And as long as the research says for autism, earlier intervention. Earlier the intervention, the better it is. So माशाल्लाह से मिकाइला जहाँ पे ये और कितने बच्चे आके Yes, निकल गए they मेरे have हाथों. benefited so much, mashallah, from your Exactly. services. So बिल्कुल. वो early intervention जो है ना, that is the crux of it. बहुत changes आ जाते हैं, बहुत कुछ reverse हो जाता है, बेहतर हो जाता है. अच्छा मलिया, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएंगे कि स्पेक्ट्रम के ऊपर जो भी बच्चे होते हैं उनके कोई छोटे छोटे साइंस सिम्टम्स क्या पेरेंट्स को देखने चाहिए, व्हाट टू लुक फॉर इन देयर पर्सनालिटी, यू नो, सिंस दे आर बोर्न, कि जिससे उनको ज़रा आइडिया हो जाए कि यू नो दे नीड इंटरवेंशन, दे नीड असेसमेंट, बिकॉज मेनी ऑफ द पेरेंट्स आर यू नो by the time the kids are 10 or like 6 or 7, तो उस वक्त तक जाके उनको थोड़ा, so if you can maybe point out some symptoms and signs of autism which parents can see at an early age, वो बताइए. I would say after some parents are very aware, so but very rarely. So उनको before 1 year they can say something कि कुछ there is something odd, but generally 18 months plus. Because 18 months के around the child is developing. So your cognition, your social smiles, eye contact, responding to their names, responding to sounds, ये सब चीज़ें एकदम से आ रही होती हैं. So 18 months plus पे if a child doesn't want to hug their mothers, so that's I think big sign. If a child doesn't smile in response to somebody's smile, that's a sign. And then there are a few, these are very basic signs. And when the children they start walking, so tiptoe is another kind of indication. What age child starts speaking, words कब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. So this is usual एक routine में हो रहा है. Sometimes एक और additional चीज़ होती है, इसे we call regressive autism. 18 months तक words भी आ गए हैं, eye contact भी है, smile भी है, social smile reciprocal भी हो रहा है. And usually after 18 months the child starts regressing. That is a type of autism. तो वो बच्चा regress करता है. So उस regression को भी ignore ना करें. अगर कोई regression आ रहा है कि speech थी, words आहिस्ते से ख़त्म हो गए, phrases से कम हो गए, eye contact कट गया, socially child aloof हो जाएगा. And the child is, you know, not wanting to play with other children of the family, is getting disturbed. Hyperactivity, ADHD से आपको पता है comorbid होता है ये. So इस टाइप की साइन सिम्टम्स आ रही हैं, तो that is the first sign and first time जब पेरेंट्स को they should start taking it seriously कि क्या करना है. So सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना चाहिए once they notice these signs or symptoms in their child, तो what should they do? इनिशियली तो अपने ओन पे पेरेंट्स ना ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, देखते हैं. Then they should try to, you know, contact right people. Unfortunately, पाकिस्तान में pediatricians के पास जब बच्चे का contact vaccination तो सारा कुछ यही होता है. That's exactly where I wanted to go. Okay, यहाँ पर right persons कौन हैं और right people, because pediatricians are not trained enough. They are not trained. They are not aware. Very competent doctors as a pediatrician. Very well known, very competent. But when it comes to the diagnosis of autism or ADHD signs or delayed language, they would say बड़ा होगा तो खुद बोल पड़ेगा. It's such a patent that statement. Yes. और
पेरेंट को ना कहीं से भी वो साइ ऑफ रिलीफ हो जाता है, इसके डॉक्टर ने कह दी, पीडियाट्रिशियन ने कहा बड़ा पेरेंट्स होगा को तो ऐसा हो होप चाहिए जाएगा। एंड प्लस इफ अ डॉक्टर इज सेइंग इट और आपका एक ही मेन बंदा उस वक्त होता है जो डॉक्टर होता है, आप हर प्रॉब्लम उसी के पास लेके जाते हो। Exactly. Whenever a child is born, I mean the parents are, especially if it's the first child, the parents have no clue. तो जैसे उनको कोई It's true. प्रॉब्लम नजर आती है, they go to the child specialist, Child right? specialist. तो उनकी क्या ट्रेनिंग वालियाँ होनी चाहिए? उनको अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि इट इज़ सच अ कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज। ऑटिज्म, स्पीच डिलेज, ADHD, ये Yes. सब कुछ बहुत कॉमन आ रहा है। इनको जब पीडियाट्रिशियन को रेफर करना चाहिए, देयर 1 or 2 जो कि कर देते हैं कि राइट आपका डोमेन क्या, वो कहेंगे कि हेयरिंग टेस्ट करवा लें। पेरेंट्स कहते रहेंगे जी हम रैटल बजा रहे हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड करता है साउंड को, बट स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देयर नेम, नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू anything that's happening in the room. So वो hearing तो है but connection नहीं है। Right. So connectivity का hearing loss से कोई connection नहीं है। So यहाँ पे ये awareness होनी important है। वो जो pediatrician अपने client को देगा, patient को देगा ना, Exactly. parents को, I mean that would be the best guide for Yes. parents कि look into it further. And I think they should all be connected with the psychologists and the panel of, psychiatrists and psychologists to look into the issue. जो भी issue बच्चे को आ रहा है, वो बेशक speech से related है, hearing से related है, कुछ भी है, the psychologist should be a part of that panel. तो अभी मुझे लगता है कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा, it's categorized separately कि डॉक्टर है, ये psychologist है, ये psychiatrist. So, and also obviously हमारे मुल्क में there's a big dogma, like people are not easy talking about it. People take it as a taboo, any kind of mental health issues. तो अभी तो वैसे it's changed a lot. I remember when 10 years ago तक तो 10 years people ago didn't तक, even used to talk about it, right? Exactly. हाँ. अभी भी ऐसा है, resistance है, because I come across a lot of parents, a lot of families from different dialects of the culture and society. So जो थोड़े से educated हैं वहाँ पे फिर भी थोड़ी acceptance है, और it's a mix, it's a combination of कहीं है acceptance, कहीं नहीं है। कंपैरेटिवली आ गई बट रेजिस्टेंस बहुत है। कुछ लोग आते हैं, दे डू कम एंड दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग, और लड़ते हैं, आपने कैसे की, हम रिपोर्ट्स को बाहर भेजेंगे, बस मेरा असेसमेंट्स है, मेरी कहना इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव फीलिंग। बट 29 ईयर्स के बाद एक आइडिया तो हो रहा होता है कि किस तरफ जा रहे हैं। स्टिल आई डोंट वांट टू से समथिंग व्हिच इज नॉट साइंटिफिक। सो ना असेसमेंट से ये कि एक बहुत क्लियर कट आपको स्टेटिस्टिकल एक आपके फिगर्स आ जाती हैं, देन यू कैन से कि ये वर्ड्स पे है, बॉर्डर लाइन है, माइल्ड है, क्या कैटेगरी है, एंड देन व्हाट टू डू, हाउ टू गो अबाउट इट। जी, टाइम फ्रेम बड़ा अर्ली ईयर्स में टाइम फ्रेम बड़ा कम होता है, राइट, बिकॉज every month it's like a new thing and the development. वो मुझे अभी याद है कि मिकाल when he was 3.5 and he was diagnosed with ADHD and there was no label as such. उस वक्त यही था कि there were symptoms of this and that. But by the time he was 6, I remember then we got another assessment done from you. तो उसके अंदर फिर exactly समझ आया था. Between 3 and 6, everything was still, because he was in the developmental stage and you never know where it's going to go. कभी वो delays ज़्यादा होते जाएंगे कि क्या वो कम होते जाएंगे. So how about kids who are above, who are in their teens? 13 से ऊपर जो बच्चे होते हैं उसके अंदर, because then there are other hormonal changes going on, and so is it more difficult to diagnose and treat them? Diagnosis usually उस टाइम तक हो जाता है, एंड स्टिल अगर मैं कहूँ कि अगर नहीं हुआ, पेरेंट्स नहीं लेके जाते ऐसे बच्चों को। हमारे ये भी एक है, काफ़ी लोग हैं जो ऐसे बच्चों को घर में डंप कर देते हैं, डंप रहता है, सोशली कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं निकलते हैं। 13 पे ये होता है, 13 में भी नहीं, आजकल तो वो प्यूबर्टी 10-11 पे हिट कर जाती है। उस टाइम ना सिचुएशन एक बहुत, वो बच्चा जो छोटी एज से भी ले रहा है थेरेपीज, वो बच्चे भी इफेक्ट होते हैं, हार्मोन्स उनको भी हिट करते हैं इन अ वेरी नेगेटिव सेंस। सो एक कुछ अरसे का टाइम फ्रेम, एक टाइम पीरियड होता है, बट अगर आप प्रॉपरली हैंडल नहीं करोगे ना तो थिंग्स विल मरिया, मेरे से बहुत लोग ये पूछते हैं, दिस इज अ गुड टाइम टू आस्क यू, कि जैसे प्यूबर्टी हिट की तो मेरा बच्चा जो पहले काम और रिलैक्स होता था विद ऑल दी साइंस ऑफ ऑटिज्म एंड ऑल, जिस तरह आप समझे हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है तो इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा, स्कूल गोइंग भी है और विद अ शैडो टीचर एंड ऑल दे आर मैनेजिंग, बट एज प्यूबर्टी हिट्स देन द किड बिकम्स मोर एग्रेसिव, देन द किड बिकम्स मोर हाइपर, डिफिकल्ट टू मैनेज, एंड वो माँ बाप की बात नहीं सुननी और वो जो सब चीजें आ जाती हैं. हाउ डू यू suggest that should be managed? Initially,
बाय द पेरेंट्स. आप लोग तो करते हो ना, देयर आर थेरेपीज फॉर दैट. ऑब्वियसली कि हमारा एक लिमिटेड एक रोल है ना, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे द चाइल्ड इज विद पेरेंट्स. यस. सो उसमें थोड़ी सी ना आपको बहुत जो बिहेवियर थेरेपी में जिस तरह से मैं बताती हूँ पेरेंट्स को, आपने रूटीन स्ट्रक्चर को बहुत मैनेज करना है, फॉलो करना है. इफ इट्स समथिंग टुवर्ड्स गेटिंग हाइपर एक्टिविटी या एग्रेसिव एंगर आ गया, रिजिलियंस आपकी एक और एंड पे जा रही है, तो आपको फूड और डाइट का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है. वैसे तो अर्ली ईयर से ही बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट अ चाइल्ड ईट्स, व्हाट दे डू नॉट ईट, लाइक आप लोग भी जिस तरह से अपने इसमें देते हैं लोगों डाइट को. पे डिजाइन पे वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु कम इन विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन. और बच्चों के भी उनके होते हैं सिम्टम्स. तो जब बात करते करते वो बताते हैं बिकॉज दे कम टू अस फॉर अदर इश्यूज लाइक वेट लॉस और हार्मोनल इम्बैलेंस और थिंग्स लाइक दैट. एंड व्हेन दिस टॉपिक कम्स इन कि हमारा बेटे को ये इशू है, तो फिर देन आई टॉक अबाउट मिकाल. देन आई टेल देम कि ये इंटरवेंशंस हमने की थी, आप भी ट्राई करो. सो डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एग्जैक्टली. अच्छा, अभी बचपन में जैसे न्यू पेरेंट्स होते हैं, हम भी जब न्यू पेरेंट्स से नहीं पता होता था कि सब लोग कहते थे शुगर कट डाउन कर दें, ये GFCF डाइट पे चले जाएं, ग्लूटेन फ्री कर दें, लैक्टोज फ्री, केसिन फ्री कर दें. सो वी ट्राइड ऑल दैट. सो इन द बिगिनिंग इट डिडंट यूज्ड टू वर्क. I think we tried it for like 3 or 4 months. It's very difficult. Parents के लिए भी overwhelming होता है. Exactly. कि अब रोटी भी नहीं खाएगा बच्चा, ये भी नहीं खाएगा, कोई डेयरी प्रोडक्ट किसी चीज में है वो भी नहीं खाएगा. नजर आ जाएगा तो बच्चे ने खाना है, गेस्ट आ जाएंगे तो खा लेंगे. These are practical problems. Yes, exactly. पेरेंट्स जब गेस्ट आते हैं तो रोकना बहुत मुश्किल होता है. अब आप हमें बताएं हम क्या करें. बिल्कुल. So that's a situation जो कि पेरेंट्स के लिए वाकई में बहुत मुश्किल हो जाती है. तो उसमें भी यही देखें, रियलिटी दुनिया में तो रहना है ना. Yeah. So अगर आप बच्चे को पूरे दिन में कंट्रोल कर रहे हो कि once in a while किसी के सामने खा भी लिया तो वो मैनेज हो जाता है. डाइट का एक अपना रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने कहा डेयरी और ये सब चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है जैसे हर्ब्स वगैरह का आप बता रही होती हैं उस तरह से. सेकेंडरी है, सप्लीमेंट्री है, थेरेपी की अपनी वैल्यू, बट उसके साथ अगर डाइट को भी कंट्रोल करते हैं, there are so many aspects. Diet का मतलब है कि जो भी आप ingest करो. It could be medication, literally, because you're taking it orally. It could be your food. It could also be herbs, supplements, इस तरह की चीजें, vitamins and all. Exactly. So there is a whole list of things जो मिकाल के ऊपर भी हम different चीजें try करते रहे. And sometimes, मतलब my point was कि okay, so we have a list. K2 उसने लेना है, magnesium लेना है, उसने ये लेना है, vitamins की एक list है. But they don't always work. Sometimes you feel okay, why is this not working and it was working before. तो ये सारी चीजें ना, I think there should be a body which should have a herbalist, a nutritionist, a dietitian, a psychologist, a psychiatrist and a pediatrician. है ना, इस तरह की कोई होना चाहिए सेंटर या इस तरह के होना एक ही जगह में. वो पेरेंट्स जब आए तो आप उनको ये गाइड कर सकते हो कि these are the therapies, this is the medication, this is the diet and these are the supplements. Ideally. I wish, I hope ऐसा कोई सेटअप हो. ये बोलते बोलते मुझे खुद ख्याल आ रहा है कि why isn't there something like that, and actually it's nowhere in the world. ये सिर्फ पाकिस्तान की बात है. but still एक पैनल बैठ जाता है उसमें, हर्बलिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट फिर भी नहीं होते, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आपके OT स्पेशलिस्ट हैं, स्पीच लैंग्वेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब बैठ जाते हैं. स्टिल मैं तो कहती हूँ वो भी एक अच्छा एक है कि सब लोग इकट्ठे बैठते हैं. बिल्कुल. मुझे लगता है मुझे 29 years हो गए हैं काम करते करते, आपको भी काफी सारा टाइम हो गया. सो मे बी वी कैन नाउ थिंक ऑफ समथिंग डेवलपिंग लाइक दैट, बिकॉज़ मुझे लगता है अब हमारा तो वो टाइम आ गया कि we now need to give progress it further. away. ये चीज हो गई. Exactly. So we've learned so much during this time and we've worked on so many things. और इसके ऊपर I think this is something new that we can do together. जैसे हमारे पास ashwagandha है, so it has ashwagandha in it, जो एक herb होता है. तो मिकाल भी वो लेता है. It's very very beneficial for serotonin levels, for decreasing the cortisol levels in the brain. और आपको पता है कि gut brain axis जो है, there is like a whole system called the enteric nervous system. So enteric nervous system एक चीज है जो ब्रेन को और गट को डायरेक्टली कनेक्ट करता है. जैसे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है. इट्स लाइक अ सिस्टम व्हिच कनेक्ट्स योर ब्रेन डायरेक्टली टू योर गट. जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी गट फीलिंग ये है, या अब हम फॉरन कोई अगर हमें बैड न्यूज मिलती है तो हमारा टमी खराब हो जाता है. So and vice versa. So if your tummy is healthy, if your microbiome is healthy, if you have a good flora balance in your digestive system, it affects your brain positively. एंड ऑटिज्म में तो आपके इश्यूज गट रिलेटेड बहुत ज्यादा हैं, गट के इश्यूज बहुत हैं. एंड वही जब हम बात करते हैं टीन एज में एंजाइटी भी हिट करती है. बिल्कुल.
बच्चा या लेजी हो रहा है या हाइपर हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, नर्वसनेस है, एंड नॉन वर्बल है तो उसको एक्सप्रेशन नहीं है। बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं है तो वहाँ अगर तो अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स का बहुत अच्छी है तो दे वुड नो कि क्या है। तो वही अगेन वहाँ हार्मोनल बैलेंस की थोड़ी जरूरत बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। और ये तो मैं आपको बताऊं कि एसटी के अलावा किसी भी बच्चे में It व्हेन happens. एनीबॉडी Exactly. हिट्स अभी टीनेज। बल्कि मैं उस दिन पढ़ रही थी कि 45% ऑफ द पीपल इन यूएस दे हैव बीन डायग्नोज्ड इन द लास्ट आफ्टर कोविड, वो बता रहे थे, इन द लास्ट 3 years or 4 years have been diagnosed with adult ADHD. They didn't have it when they were teens, in their teens, or when they were children. और adult ADHD is again one of those things which has not been tapped at all. पाकिस्तान में कोई भी इसके ऊपर ना बात करता है ना काम करता है, बिकॉज यहाँ पे लगता है कि यार कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप थोड़े बड़ी एज के हैं तो आप हैंडल कर लेंगे, या फिर हम कहते हैं वी कैन पुट इट ऑन फैक्टर्स आउटसाइड आवर ब्रेन कि ओके सो दिस इज नॉट इंट्रिंसिक, इट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो अपने बाकी सर्कमस्टेंसेस में मैनेज करें, या फिर हम कह देते हैं कि यार जो कुछ है बस अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ठीक कर देगा, दैट्स a part of it. Obviously you can pray for yourself and all, but you need to really understand that this is a biological problem. It is. And it needs to be treated like Exactly. And once there, it's going to stay there with you till बिल्कुल। you are alive. So neurological एक जो issue है वो है awareness भी आ गई है। एडल्ट ADHD एग्जिस्ट हमेशा से करते थे, जिसमें अगर आप बहुत पीछे जाके देखो ना, जहाँ बहुत कुछ लोगों के एक्सीडेंट प्रोन हैं एडल्ट्स में, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, Yes. शादी, डिवोर्स, अगेन सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, जॉब, अगेन स्विचिंग ऑफ जॉब्स इज वेरी कॉमन। सो एडल्ट ADHD में इस तरह से दिखता है। बच्चा जो है, दे कीप फिजिटिंग, दे कीप they're jumping, Yeah. they're hyper. After 12 years of age, hyperactivity settles down Yes. a bit. Mostly हो जाती है, बट आजकल चल रही है क्योंकि जनरली जो प्रोसेस फूड है और जो चीज़ें हैं, एंजाइटी लेवल्स हैं, और हर चीज़ ज़्यादा है। बिल्कुल। एंड इंटरेस्टिंगली सादिया, हमारे पास बहुत रिसेंटली केसेस आए हैं एडल्ट ADHD डायग्नोस करने के लिए। Oh, तो बहुत मेडिकल I'm so glad actually that हाँ। people are coming for this, because पीपल आर कमिंग है, एडल्ट्स जो है ना वो खुद ही आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स सिर्फ रेफरल सही। पेरेंट नहीं है। नहीं, पेरेंट्स अब उनके बड़े हो गए ना, बड़े हो पेरेंट्स गए। को नहीं अब समझ बच्चों आती को है बात। अब हाँ। लोगों का अवेयरनेस है। Yeah. तो कितनी मेडिकल स्टूडेंट्स आई हैं, कितने लोग Okay. वर्क प्लेस से आए हैं। अच्छा। दे डूइंग अमेजिंग जॉब, बट उनको है कि कांस्टेंट फोकस नहीं होता, सस्टेन्ड अटेंशन का इशू आ जाता है, जॉब स्विचिंग के इश्यूज हो रहे हैं फोकस के साथ। बट एडल्ट ADHD में एंजाइटी एसोसिएटेड है और बहुत हाई है। Yeah. So, ये एक जो है ना शायद डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, anxiety, इट गोस depression. साइड बाय Side साइड। by बट मुझे लगता है कि हमें डेफिनेटली एक ऐसा कोई सेटअप बनाना चाहिए जिसमें सारे हर्बलिस्ट, इवन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, दे प्ले अ वाइटल रोल। very vital, very अभी vital हमारे पास role. आते हैं लोग ओबेसिटी और ये चीजें, ऑब्वियसली वी हैव हेल्थ सेंटर, तो उसके अंदर वो आते तो वेट लॉस के लिए, बट व्हेन वी आस्क देम टू गेट देयर हार्मोन्स टेस्टेड, उसके अंदर काफी सारे इश्यूज पे नजर आ जाते हैं। कॉर्टिसोल लेवल्स भी हम टेस्ट करा लेते हैं। सो ऑल दीज हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स, एंड देन योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, द साइकोलॉजिस्ट, द Important है। साइकियाट्रिस्ट, तो एक ऐसी जगह बनाते हैं। दैट्स अ वैसे ग्रेट सादिया, आइडिया। आई एम सीरियस अबाउट इट। हाँ, करना चाहिए। अच्छा, इस शो के थ्रू हमें एक आइडिया आ गया। हम लोग इतनी दफा मिलते हैं, व्हाई हैवंट वी एवर थॉट ऑफ दैट इस तरह से बात नहीं की। It's so good to be kind of reminded of the fact कि यार हम लोगों से क्यों एक्सपेक्ट करें। हम कह रहे हैं क्यों नहीं बनाते, ऐसा कोई सेटअप क्यों नहीं होता, क्यों नहीं maybe होता? we क्योंकि should मुझे do लगता it. है अब हम इतने बड़े हो गए, हमारी इतना काम, इतना वर्क एक्सपीरियंस हो गया है, और हमने इतना देख लिया कि क्या ट्रेंड्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहे हैं ओवर द yeah. इयर्स, एंड अवेयरनेस right. आ रही है। तो मुझे लगता है अब हम लोगों की शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी है Yeah. कि And also, I हम think कुछ it's करें the right start. time because people are now aware. People I are remember aware. 10 years ago आप किसी से बात भी करो तो वो कहते हैं कि नहीं यार ये हर्ब से क्या होगा, या कोई सिर्फ मेडिकेशन में बिलीव करता है, कोई सिर्फ थेरेपी में करता है, कोई सिर्फ डाइटरी चेंजेस में करता है। मेडिकेशन पे बहुत लोग चाहते हैं, उनको होता है कि वो क्विक फिक्स जल्दी से दे दें। Exactly. बहुत लोग कहते हैं अच्छा ऑटिज्म है, डायग्नोज हो गया, Yeah. हार्ट ब्रेकिंग होती है, बट क्योंकि कोई मेडिसिन बता दें, कोई मेडिसिन होगी I know. तो वो और मुश्किल होता है बताना कि मेडिसिन नहीं होती। आपको सपोर्टिव हाँ। कुछ कर देगी, पर मेडिसिन नहीं And है। medicine should be the last resort. I mean, they should be हाँ। there at the end. अगर आपका थेरेपी से, हर्ब से और इस तरह की नेचुरल ट्रीटमेंट से नहीं फर्क पड़ा, डाइटरी चेंजेस आर बिग थिंग, वो अगर उससे फर्क नहीं पड़ा, then you should go for medication. एग्जैक्टली। लेकिन थेरेपी ADHD और ASD के लिए Yeah. बिहेवियर थेरेपी इज इम्पोर्टेंट, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी इज इम्पोर्टेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी OT जो है, जी। और ये
कंबाइंड ही चलती हैं, तीनों का एक रोल है कलेक्टिवली। मलिया, आप हमारे ऑडियंस के लिए बताएंगे कि ये जो थेरेपीज आपने अभी नाम लिए जिनके, तो ये कौन सी किस चीज़ के लिए होती है, और पेरेंट्स को थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर वो आपके पास तो आते हैं, आई नो फॉर श्योर के इम्पैक्ट पे जो लोग आते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, बट बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स ऐसे हैं कि जहाँ पर पेरेंट्स को अगर पता हो कि हमारे बच्चे को ओटी चाहिए, हमारे बच्चे को एबीए चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, सो कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट लिटिल बिट? देखिए, बिहेवियर थेरेपी या एबीए, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, आपको चाहिए बच्चे को आपने बिहेवियर वाइज सेटल करना है। जब एडीएचडी होगा या एसटी होगा, आपके टेंट्रम्स होंगे, आपकी मैनिपुलेशंस होंगी, आपका ऑन सीट बिहेवियर ही नहीं है और कंप्लायंस नहीं है, इस सब की चीज़ों के लिए आपको बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत होती है, वेयर यू वर्क ऑन अ चाइल्ड्स बिहेवियर एंड शेप अप द बिहेवियर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। मैनिपुलेशन आ गई तो कैसे हैंडल करनी है, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। वी एज थेरेपिस्ट एंड पेरेंट्स, as parents need to be very consistent in following the behavior principle, the ABA के rules, in order to shape up the behavior. Then comes speech and language. अच्छा, सब ओवरलैप भी होती हैं। स्पीच लैंग्वेज में ऑब्वियसली जैसे बड़ा सिंपल रूल बताते हैं कि unless and until child says or speaks something, दे दो पानी, चिप्स, पर डिटर्मिन हो गया होता है कि इतना ही बोल सकता है। अगर वो भी नहीं लेवल तो पॉइंटिंग, यू नो, हैव सम कनेक्शन। तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, वो भी बहुत आपको गाइड करें, उसको लेके चलना है। ओटी इज दे वर्क ऑन ऑल योर सेंसेशंस, और जो 5 सेंसरी हमारे जो सिस्टम्स हैं उन पे वर्क करते हैं, क्योंकि ऑटिज्म में बहुत ज़्यादा सेंसरी इश्यूज हैं। हैंड फ्लैपिंग है, नॉइजेस बॉदर कर रहे हैं, लाइट कम एंड डार्क बॉदर कर रही है। बिल्कुल। आपका सेंसरी सिस्टम कैसे स्टिमुलेट हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, उसको टैप अप करना। इवन एडीएचडी के अंदर ये ओटी बहुत अच्छा वर्क प्ले करती है, फाइन मोटर के अंदर बहुत प्ले करती है। जब तीनों लेवल्स पे थेरेपी कलेक्टिवली मिलती है, सो बच्चे में चेंज मस्ट है, आता ही आता, इफ द वर्क इज बीइंग डन इन द राइट डायरेक्शन। सो यू आर राइट, आजकल बहुत सी इंस्टीट्यूट्स और सेंटर्स बन गए हैं। आई वुड लाइक टू, यू नो, टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड सेइंग के मैं पेरेंट्स को कहती हूँ जहाँ भी जा रहे हैं प्लीज पता करो, डू योर ओन रिसर्च, एग्जैक्टली करो आपके थेरेपिस्ट के क्रेडेंशियल्स क्या हैं। आजकल बहुत से फेक लोग कोई भी एक अपने ऊपर लेबल लगा के बैठ गए, पेरेंट्स को मैनिपुलेट करें, कैश Malia, I think that's the way it is in all the fields these days. हम तो डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट और वो भी लोग हमें कहते हैं कि हमने इनसे कंसल्ट किया, वी लाइक डिड यू एवर चेक वो कहाँ से पढ़े हुए, क्या डिग्री, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चीज़ है, बिकॉज आई मीन दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर वो नहीं है तो मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग ठीक नहीं होंगे, मे बी दे आर ओके इन देयर ओन राइट, बट व्हाट दे नीड टू डू इज इफ दे आर गोइंग इनटू दिस फील्ड तो पहले उसके बारे में पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बगैर उसके करें, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कहाँ से हो, कितना एक्सपीरियंस है, अपने बच्चे को किसी के हवाले ऐसे रैंडम ना कर दें, बिकॉज इट कैन बी वेरी डैमेजिंग स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एट दैट एज, और जो इतने पहले वल्नरेबल बच्चे हैं। वल्नरेबल बिकॉज 5 इयर्स के बाद देखो स्पीच की जो थेरेपी की जितने भी आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, मसल्स हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी स्लो होना शुरू होती है, हार्ड हो जाता है। तो 5 ईयर से पहले आपकी बिहेवियर थेरेपी, आपकी स्पीच थेरेपी, सब चीज़ों पर जितना वर्क हो जाएगा, बच्चे बहुत बेहतर होते हैं। अच्छा, हमारा इंटरेस्टिंगली बहुत बच्चे माशाल्लाह से हर साल मेन स्ट्रीम होते हैं, स्कूल जाते हैं। जी। वो सादिया हर साल हमारा रेशो इम्प्रूव हो रहा है। सो दिस ईयर 10 to 15 स्टूडेंट्स आर बीइंग, यू नो, मेन स्ट्रीम्ड। That's so amazing, so heartening to know. Exactly for us. Because हमारा मकसद ही यही है ना, पर्पस यही है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता सिमुलेट कर दे मेनस्ट्रीम में। तो अर्लियर इंटरवेंशन, जित और बच्चे छोटे छोटे आ रहे हैं, स्कूल्स में भी अवेयरनेस है, दे आल्सो सेंड चिल्ड्रन स्कूल एंट्री के लिए। I know you work with a couple of schools जिनके तो आप बोर्ड पर हो एज अ साइकोलॉजिस्ट, and that's how वो फिर छोटी एज में आते हैं, 2.5, 3.5। उनकी स्पीच थेरेपी, बिहेवियर, ऑनसीट बिहेवियर, कंप्लायंस है, क्लास में क्या टीचर ने अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिए, कमांड फॉलोइंग है तो बच्चा बैठेगा, ऑन सीट है तो बच्चा बैठेगा, कलरिंग कर रहा है, या अगर आप प्ले ग्रुप में प्ले डो से भी खेल रहे हैं तो यू नीड टू सिट डाउन एंड देन लिसन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। सो वो रिसेप्टिव लैंग्वेज। आई थिंक मलिया, मुझे एक और चीज़ लगती है हमारे यहाँ पे जो थोड़ी सी मिसिंग है, कि शुरू से लोगों को आदत है कि अपने बच्चे जो हैं किसी और को देने की, लाइक यहाँ पे हेल्प होती है, उनको दे दिया, ग्रैंड पेरेंट्स को दे दिया, यू नो, खुद वर्किंग पीपल है या नहीं है, you know, वो भी निकले हुए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये जो I mean that's what I saw, like बाहर के मुल्कों में, यहाँ पे when we were in Canada, तो चॉइस ही कोई नहीं है,
आपने अपने बच्चे के साथ रहना ही रहना है, बेशक वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है, बेशक वो अच्छा बिहेव कर रहा है, बेशक उसको मतलब आप अपना जॉब भी छोड़ देंगे लेकिन आप बच्चे को नहीं छोड़ सकते, ऑब्वियसली बाय लॉ ऑल्सो अब्रॉड यू कैन नॉट लीव योर चिल्ड्रन बिलो 12, यू कांट लीव देम अनअटेंडेड, यू कांट लीव देम अलोन एट होम, यू नो। तो एनीवेज, तो स्पेशली जिनके स्पेशल नीड्स हैं वो बच्चे तो हर वक्त पेरेंट्स के साथ होते हैं, सो पेरेंट्स उनको खुद बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। आई फील कि पाकिस्तान में मैं जिस तरह पेरेंट्स को मिलती हूँ, कई बार होता है कि काउंसलिंग की कि चलें यू नो ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इट्स अ प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू इट, यू नो। मुझे स्कूल्स वगैरह भी बुलाते हैं कि जहाँ पे मिकाल पढ़ता था ना, वो स्कूल सारे के सादिया के पेरेंट्स को हमने बताना है, तो कैसे बात करें, काउंसलिंग इनकी करें या उनसे बात करें। सो आई कीप मीटिंग अ लॉट ऑफ पेरेंट्स लाइक दैट। मुझे ये मैंने देखा है कि जो उनके डैड्स हैं ना, द फादर्स, they are not in tune with the child. They don't know the issues of the child. So सारा दिन आप मैनेज कर भी लोगे, थेरेपी भी कर लोगे, मदर भी अपना सारा काम छोड़ के उसको देख लेगी। Once the father comes home, everything is reversed. Exactly. आपने भी यही देखा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हमारे मैं सपोर्ट ग्रुप करवाती हूँ पेरेंट्स के ना, कि आपकी जो भी इमोशंस हैं, कैथारसिस है, कुछ भी है, यू नो, इंटरेक्ट विद ईच अदर एज पेरेंट्स। उसमें अगर 30 मदर्स हैं ना, तो 1 to 2 फादर्स होते हैं। बहुत कम फादर्स, इवन कंसल्टेशन के लिए भी बहुत कम फादर्स आते हैं। सो इट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, जहाँ मदर और फादर दोनों ऑन वन पेज होते हैं, बच्चे में चेंज बहुत अच्छा आता है। Exactly, because they're not working against each other. Exactly. अगर मदर को एक चीज, जिस तरह आप थेरेपिस्ट है, उसने जो भी ट्वाइस अ वीक थेरेपी के लिए बच्चा आ गया, 3 hours इन द होल वीक ही इज विद द थेरेपिस्ट, राइट। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ है, ज्यादा टाइम फिर मॉम के साथ है तो वो कर लेगी, लेकिन जो डैड के साथ उसका टाइम है, स्पेशली बॉयज, especially when they enter their teens, they need a lot of time and a lot of attention from their fathers. तो उस वक्त जो डैड्स हैं ना, वो सेम पेज पर नहीं होते। आई थिंक इसका भी कोई प्रोग्राम अलिया शुरू करना चाहिए, स्पेशली ट्रेनिंग द डैड्स on you know how to behave with their children with special needs. हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, अटेंडेंस इतनी कम थी कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट जो हम चीज करना चाह रहे हैं इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। yeah, we should definitely do that. That's a great idea. अच्छा, कभी-कभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ये भी आइडियाज आ जाते हैं जो हमारा एक न्यू बिजनेस वेंचर शुरू हो सकता है, which can help people, you know, क्योंकि वही बात है कि मिकाल is now 20 years old. I have seen so much and so many kids, and you have been in this work for 29 years. I think कुछ ना कुछ हमारी ऐसी learnings हैं definitely, which we can put them together and, you know, make a platform for people. Yes. Right. पहले आगे आपके क्या इसके बारे में, next what do you plan to do next with your center and अभी तो खैर हमने एक प्लान तो बना ही लिया, एक तो बन ही गया। लेकिन इसको रियली मुझे अभी फीलिंग, एक साल से ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि अब इट्स टाइम for me to, you know, to deliver, to you know, share it with the younger generation. जो नए प्रोफेशनल्स आ रहे हैं उनकी अप्रोच बड़ी डिफरेंट है, बड़े मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर जो आजकल नए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम उनको अब दें और सिखाएं और आगे और लोगों को ज़्यादा, बिकॉज हर चीज़ इतनी राइस पे है और वी नीड मोर स्पेशलिस्ट और मोर बेटर ट्रेन पीपल। तो एक तो ये मुझे बहुत है कि अवेयरनेस पे भी वर्क हो, एक ये कि नए लोगों को ट्रेन करें, एक ये आइडिया जो हम कर रहे हैं, जो चीज़ अभी तक हमें लगता है कि काफ़ी अवेयरनेस तो आ गई, बट देयर सो मेनी ग्रे एरियाज जिसको हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, वो करें। एडल्ट्स का, पेरेंट्स का बहुत क्वेश्चन होता है कि एडल्ट ADHD या ASDs के लिए हम क्या करें, मेनली ASDs के लिए, बिकॉज कोई है नहीं तैयार करने के लिए। आई नो फॉर अ फैक्ट, बिकॉज मिकाल इज 20 और मुझे आप एंड में आप ही याद आते हो, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पर बच्चे विद स्पेशल नीड्स, यू नो, ग्रोन अप किड्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। यू नो, कोई एटलीस्ट ऐसी जगह पे हो जहाँ पर वो बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। मैं एक काम करी थी एक चीज़ के ऊपर, विच इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्ली इन द फ्यूचर समटाइम नेक्स्ट ईयर, कि आई एम ट्राइंग टू बिल्ड एन ऐप विच इज़ कॉल्ड द बडी ऐप। उसमें बडीज एक दूसरे को ढूंढेंगे, पीपल विद स्पेशल नीड्स विद देयर ओन इंटरेस्ट एंड देयर एज ग्रुप एंड देयर जेंडर, दे विल पुट इन देयर डेटा एंड देन द ऐप विल मैच देम विद सिमिलर किड्स। एक्सीलेंट। ताकि वो उनसे मिल सकें, बात कर सकें कुछ। इट वाज जस्ट अ कॉन्सेप्ट आई हैड, और आई थिंक मैं नेक्स्ट ईयर तक ही होगा, अभी तो इट्स द एंड ऑफ दिस ईयर। इफ यू नीड एनी हेल्प, आई एम विद यू। यस, वी हैव गॉटन सो मेनी आइडियाज टुडे। मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए मलिया। विद आवर यू नो सुपर बिजी लाइव्स, आई थिंक वी डोंट गेट इनफ टाइम विद ईच अदर, बट व्हेनेवर वी मीट वी डू कम अप विद आइडियाज एंड यू नो थिंग्स दैट नहीं, इसको प्रैक्टिकली वी शुड करना, वी शुड डू समथिंग बिल्कुल प्रैक्टिकल उसमें लाना चाहिए। या
I will come to you and we'll make a joint Definitely. plan for this, inshallah. Inshallah. Chale. inshallah. Thank you so much, Malia. It was a pleasure having you on the show. Same Is here. there any message that you want to give to our audience regarding mental health issues or regarding the awareness, whatever you want to say? I think the only thing is, first thing is to be aware if there is any sort of mental health issue, whether it's special needs, anxiety, depression, or any other condition, because बढ़ रहा है, चीजें increase हो रही हैं. Secondly, don't put them to a denial zone. Acceptance है, hard होती है, मुश्किल होता है. Acceptance आ जाती है तो you work on it and you then get over whatever it is. But denial जो है ना, denial means delaying the problem. For me, denial initially कुछ टाइम के लिए तो मुझे लगता है थोड़ा सूट करता है. Right. Deny कर दिया. But then don't stay there. Face it, deal with it and come out of it. और निकल आओगे आप. बहुत हेल्प अवेलेबल, बहुत कुछ चीजें हैं करने के लिए. डिले ना करो चीजों को. I think Accept that's a करें. great advice. I mean, you've seen so many people go through this for 29 years. Coming from you, I think people should definitely give it a lot of thought. कि मलिया अगर बोल रही है तो उसके अंदर कोई तो वजह होगी. Like you need to go through the pain to come out of it. Yeah, You can't just therapy is jump not over easy. it. हाँ, therapy is not easy. Treatment is not easy. But करोगे तो आपकी अपना benefit है. And then उसके बाद the life and the world feels so good. So चीजें बहुत अच्छी, बहुत बेहतर हो जाती हैं. Absolutely. So and mental health है तो आप फाइनेंशियली कुछ कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ हॉबीज आप रख में सकते जितनी हो. भी एनर्जी है, आप में जितनी भी आप में टैलेंट है, या आप में जितनी भी क्वालिफिकेशंस है आपके पास, जब तक आपकी एंजाइटी और आपका स्ट्रेस खत्म नहीं होगा, डिप्रेशन खत्म नहीं होगा, आप उसे प्रैक्टिकली कर ही नहीं पाओगे. fully achieve नहीं very कर important. सकते. Yeah. हाँ, it is. Thank you so much, Malia, for this message, Sadia. and hopefully our audience are going to take benefit from it. And Hopefully, yes. thank you everybody for joining us today for this show, and I hope you enjoyed it, and I hope that this is going to benefit you a lot with your mental health issues. See you again in another episode. Allah Hafiz.